کہ الیکٹرک کی منمانیاں سی ای او مونس الوی سندھ اسمبلی کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ اسمبلی نے بلایا مگر نہ آئے۔ اگر آئندہ بلانے پر نہ آئے تو گرفتاری کا وارنٹ جاری کریں گے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے بڑا اعلان کر دیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر داخلہ کا گھر جلانے کی مذمت۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام شہید بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ مقرر کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ شہر میں شدید گرمی کے ساتھ کے الیکٹرک کا قہر، سی ای او صوبائی اسمبلی کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ اسمبلی بلانے کے باوجود اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ پینل آف چیئرمین غلام قادر چانڈیو کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس، اراکین مونس الوی کے اجلاس میں نہ آنے پر برہم۔ پیپلز پارٹی کے آصف موسیٰ نے تحریک التوا پیش کی۔ ضیاء لنجار نے خبردار کیا اگر آئندہ نہیں آئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر صاحب کی بات ویلڈ ہے اور یہاں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اسمبلی ممبرز کوئی اتنے وہ کمزور نظر آ رہے ہیں اور سندھ اسمبلی کو اتنا کمزور سمجھا جا رہا ہے، اور آپ کوئی ڈیٹ طے کر لیں اور نوٹس کریں گے ان کو، اگر انہوں نے ایکسکیوز کیا تو ویل ایشو وارنٹس۔ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے اراکین نے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ محکمہ بلدیات کے متعلق سوالات کے جوابات میں وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ 2200 سے زائد غیر قانونی عمارتوں کو مدھم کیا گیا۔ ایس بی سی اے کے 100 سے زائد افسران کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اب نیا قانون بنایا جا رہا ہے جس کے تحت ضلعی اور ٹاؤن انتظامیہ کو بھی غیر قانونی بلڈنگز کو گرانے کا اختیار دیں گے اور عمارتیں منہدم کرنے کا کام آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ 1560 جو ہے وہ بلڈنگز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور یہ بھی دسمبر تک کی تھی، بلکہ اگر آج اپریل تک میں بتا دوں تو یہ 669 اس میں ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً 2200 سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 46 افسران کو ہم نے شوکاز کیا ہے، 28 کو ہم نے سسپینڈ کیا، 32 کو ہم نے رپورٹ کروایا، 41 سے ایکسپلینیشن لی گئی، 12 کے خلاف ایف آئی آرز کٹوائی گئی اور 52 لوگوں کے خلاف انکوائری کر کے ان کے خلاف کوئی پینلٹی جو ڈپارٹمنٹ جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی ایکشن لے سکتے ہیں تو مائنر پینلٹی بھی ان کے اوپر لگائی گئی۔ ایوان نے انتہا پسندی کے خلاف ایکسیلنسی سینٹر کے قیام اور ایڈورڈ یونیورسٹی سکر کے ترمیمی بل منظور کر لیے، جبکہ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے گھر جلانے اور خضدار واقعے کے خلاف اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام شہید بے نظیر بھٹو کے نام کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے اجلاس جمعے کے روز سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ سندھ حکومت کا بڑا اقدام، زرعی آمدن پر سپر ٹیکس کا نفاذ۔ سپر ٹیکس صرف بڑی زرعی آمدن رکھنے والوں پر لاگو ہوگا۔ زرعی آمدن میں سالانہ 15 کروڑ روپے تک کوئی سپر ٹیکس نہیں لگے گا۔ سپر ٹیکس 15 کروڑ سالانہ سے زائد پر ٹیکس وصولی ہوگی۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں جانیے۔ سندھ حکومت نے زرعی آمدن پر سپر ٹیکس لگا دیا۔ سندھ ایگریکلچر انکم ٹیکس ایکٹ 2025 کے تحت نیا ٹیکس لاگو۔ سندھ ریونیو بورڈ کے مطابق 1 جنوری 2025 سے سپر ٹیکس کا اطلاق سالانہ بنیادوں پر وصول ہوگی۔ ایس آر بی کے مطابق سپر ٹیکس صرف بڑی زرعی آمدن رکھنے والوں پر لاگو ہوگا۔ یہ بھی واضح کیا کہ زرعی آمدن میں 15 کروڑ روپے تک کوئی سپر ٹیکس نہیں لگے گا۔ نئے قانون کے تحت سالانہ 15 سے 20 کروڑ آمدن پر 1% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ 20 کروڑ سے 25 کروڑ آمدن پر 2% اور 25 کروڑ سے 30 کروڑ آمدن پر 3% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ زرعی آمدن پر سالانہ 30 کروڑ سے 35 کروڑ پر 4%، 35 سے 40 کروڑ پر 6% ٹیکس ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق 40 کروڑ سے 50 کروڑ آمدن پر 8% اور 50 کروڑ سے زائد پر 10% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ ایس آر کے مطابق سندھ حکومت کا مقصد زرعی شعبے سے محصولات میں اضافہ اور مساوی ٹیکس نظام رائج کرنا ہے۔ یہ بھی صاف کہا کہ زرعی سیکٹر میں آمدن چھپانے کے رجحان کو روکنے کی کوشش بھی ہے اور پالیسی سے زرعی آمدن کا شفاف ریکارڈ رکھنے میں مدد ملے گی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی چیمبر نے وفاقی بجٹ 2025-26 کے لیے اپنی جامع سفارشات پیش کر دی۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ صنعتوں کو سہارا دینے، برآمدات بڑھانے اور ٹیکس نظام کو آسان بنانے کے لیے فوری اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ تفصیلات جانیں گے کاوش میمن کی اس رپورٹ میں۔ بجٹ میں ہو صنعت دوست فیصلے تو پاکستان بنے اقتصادی طاقت۔ کراچی چیمبر نے تجویز میں معیشت کی بحالی کا نقصہ بتا دیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وفاقی بجٹ 2025 اور 26 کے لیے اہم تجاویز پیش کر دی ہیں۔ مرکزی نکات میں ٹیکس نیٹ کی
वसत, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ और बरामदात के फरोग पर जोर शामिल है। कराची चैम्बर ने सनती खाम माल और दरामदी अशिया पर टैक्सों में कमी की सिफारिश की है। बरामद कुनंदगान के लिए जीरो रिटर्निंग और फाइनल टैक्स रिजीम की बहाली भी तजवीज़ की गई है। चैम्बर ने तजवीज़ दी कि प्रॉपर्टी मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स को 3% से कम करके 1%, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेक्शन 7E का खात्मा और कैपिटल गेन टैक्स की पुरानी शरह की बहाली भी सिफारिशात में शामिल हैं। बरामदी शोबे के लिए जीरो रिटर्निंग, फाइनल टैक्स रिजीम की वापसी और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम की सहूलतों में तोसी की तजवीज़ दी गई हैं। चैम्बर ने IDF सरचार्ज की आर्जी मुअत्तली का भी मुतालबा किया है जब तक फंड में मौजूद रकूम खर्च न की जाएं। दरामदी स्टील, मोटरसाइकिल पार्ट्स, सोने और अद्वियात पर कस्टम ड्यूटीज, सेल टैक्स में कमी की सिफारिश की गई है ताकि पैदावारी लागत कम हो और स्मगलिंग की हौसला शिकनी हो। कराची चैम्बर ने जोर दिया कि किसी भी नए कानून के निफाज से कबल स्टेक होल्डर्स, बिलखुसूस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को एतमाद में लिया जाए। चैम्बर्स का कहना है कि इन तजवीज़ का मकसद पाकिस्तान को एक पायदार, मुनसिफाना और तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ ले जाना है। ये तजवीज़ बजट में शामिल की जाएं तो न सिर्फ सनती तरक्की मुमकिन है बल्कि बरामदात और रोज़गार के मौके में भी खातिर खा इजाफा हो सकता है। काविश मेमन, सिटी 21। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने नए माली साल बजट तजावीज़ हुकूमत को भेज दी। प्रॉपर्टी मुंतकली पर एडवांस टैक्स ख़त्म किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेट 0.5% मुकर्रर किया जाए। आबाद ने बजट के लिए वफाक को तजावीज़ पेश कर दी। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी का टैक्स पॉलिसियों में 15 साला तसलसल पर जोर, जबकि टैक्स रिफंड की मुंतकली के लिए तहरीरी मंजूरी का तकाजा ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। तामीराती शोबे ने अगले माली साल के बजट तजावीज़ हुकूमत को दे दी। तामीराती और डेवलपमेंट सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसी में 15 साला तसलसल और टैक्स रेट में नरमी पर जोर दिया गया। बजट तजावीज़ में FBR के कवानीन में तब्दीली के लिए अहम नुकात शामिल। बिल्डर से खरीदारों को प्रॉपर्टी मुंतकली पर सेक्शन 236C एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़ और सेक्शन 236 के तहत ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेट 0.50% मुकर्रर किया जाए। बजट तजावीज़ में सेक्शन 7E के तहत फर्जी आमदन टैक्स खत्म करने पर जोर दिया गया है। कहा गया है कि सेक्शन 7E बगैर आमदनी पर प्रॉपर्टी पर 1% टैक्स मालिकान और सरमाकारों के लिए माली दबाव का सबब बन रहा है। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा है कि विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी और मियारी टैक्स रेट्स मुकर्रर किए जाएं। अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि 1 जून से कराची में कैमरों के जरिए चालान ट्रैकर न लगाने वालों को 20,000 रुपये जुर्माना होगा। DIG ट्रैफिक का फबार्टी का दौरा, टेक्नोलॉजी के जरिए मसाइल हल करने के लिए पुराज़्म। पीर मोहम्मद शाह का तजावुज़ात का तवील मुद्दती हल निकालने पर जोर। कहा, मेयर और कमिश्नर कराची के साथ मिलकर मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं। चिंची रिक्शों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया तो मुआशी मसाइल पैदा होंगे। रिपोर्ट करेंगे शायान अली। मौत की सवारी सबसे ज्यादा अमवात भी मोटरसाइकिल सवारों की होती हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का FB एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज का दौरा, ट्रैफिक से मुतालिक इनकी शिकायत व तजवीज़ सुनी और मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई। तकरीब से खिताब में पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की तादाद महज 5,500 और सड़कों पर गाड़ियाँ 80 लाख हैं। ट्रैफिक निजाम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। उन्होंने 1 जून से कैमरों की मदद से चालान और ट्रैकर न लगाने वाली गाड़ियों को 20,000 रुपए जुर्माने करने का ऐलान किया। तो हम 4 डिपार्टमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। अभी हम लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट और एक्साइज। अब हमारा जो है ना इंटरनेट अपना सॉफ्टवेयर जो है एक ही प्लेटफॉर्म है। अब हमारा अगर मैं फ़ाइन करूँगा तो उसका जो एक्साइज का जो नादहिंदा है वो भी ऑटोमेटिकली उस चालान में शामिल हो जाएगा। और अगर एक्साइज वाला अपनी फीस लेगा उससे साल की तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इसके ऊपर इतने ट्रैफिक के चालान हो गए। इसी तरह जो फिटनेस है वो ऑनलाइन होने वाली है। सरबराह ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर तजावुजात और एक्स्ट्रा सीटर रक्षों को भी दर्द सर करार दिया और सड़कों पर ट्रैफिक हादसात का सबब बनने वाली सवारियों और अवामिल की भी निशानदेही की। गाड़ियाँ कौन सी ज़्यादा एक्सीडेंट कर रही हैं? सबसे पहले जो कॉजल, उसको हम कहते हैं कॉजल व्हीकल, जिसकी वजह से तो नंबर 1 पे मोटर बाइक है, नंबर 2 पे कार है, नंबर 3 पर ट्रक है। ट्रक देखें मीडिया में ट्रक का नाम नहीं आता क्योंकि वो शायद छोटा नाम है। तो ट्रक जो है ना वो बड़ी गाड़ियों में सबसे नंबर 1 वो 17%। DIG ट्रैफिक ने शहर के मजीद 6 सड़कों पर एक्स्ट्रा सीटर रक्षों पर पाबंदी आयद करने का भी इंदिया दे दिया। तकरीब में फेडरल B इंडस्ट्रियल एरिया को ट्रैफिक के एतबार से मॉडल सनती जोन बनाने का फैसला भी कर दिया गया। कैमरामैन नवीद के साथ शायान अली, सिटी 21।
औरंगी टाउन UC4 में पानी का संगीन बहरान है। इलाका मकीन मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। ऐसे में एक फैक्ट्री मालिक ने 200 घरों को बोरिंग के जरिए पानी फराहम करना शुरू कर दिया। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में देखिए। औरंगी टाउन UC4 वार्ड 4 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में मीठे पानी की लाइन मौजूद है मगर पानी की तरसील बंद है। ऐसे में फैक्ट्री मालिक ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। 200 घरों को बोरिंग के जरिए पानी फराहम करना शुरू कर दिया। साबिक UC चेयरमैन आलम ज़ेबुल्लाई के मुताबिक 2 साल से लाइन में पानी नहीं आ रहा। गरीब अवाम हजारों रुपए के टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी का है और यहाँ गरीब लोग सारे रहते हैं, जो कि गरीब तो बदकिस्मत वैसे भी हर चीज़ ख़रीदता है, लेकिन उनकी किस्मत में ये पानी भी जो है ना ये भी खरीदे। इलाका मकीनों का शिकवा है कि सिंगल टैंकर 4000 और डबल 8000 रुपए में खरीदना पड़ता है। मीठा पानी बस टैंकर आता है, सिंगल टैंकर 4000 का, डबल टैंकर 8000 का आता है। और अगर टैंकर भी हफ्तों बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद आता है। टैंकर ये तो बस खाली ये लेटरिन और टैंकर इसी पीने के लिए, जैसे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है ना थोड़ा थोड़ा स्माइल आता है। मीटर टैंकर के जरिए। औरंगी टाउन मोमिनाबाद की तरफ मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी की किल्लत का मसला है और शहरियों का मुतालबा है कि पानी की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। अपडेट ये है कि सुरजानी में पुलिस मुकाबला हुआ है। गिरफ्तार 4 डाकुओं में एक का ताल्लुक बलोचिस्तान से निकला। मुलजिम अली आदि जराइम पेशा था। मजदा छीनने और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का भी माहिर है। रिपोर्ट कर रही हैं अनुषा जाफरी।